Hey there, amazing viewers, welcome to my YouTube channel, The Scholarship Guidebook, your passport to a world of educational possibilities. I'm excited to embark on this enlightening journey with you, where we'll explore the keys to unlocking scholarships and paving the way for your academic success. In today's video, we will delve into the details of the application process for the Turkey Government Burslari Scholarship 2024. Throughout the video, I'll provide comprehensive information on the scholarship summary, scholarship coverage, available programs, eligible universities, eligibility criteria, documents required, and step-by-step information on how to apply. Moreover, I've prepared an online apply video guide in the end of that video, specifically for students who may encounter challenges with the online application process. But before we dive into the video, I encourage you to subscribe to my channel for future updates. If you find the content informative, a thumbs up would mean the world to me. And, of course, if you have any questions, feel free to drop them in the comment section below. Scholarship Overview. The Turkey Government Scholarship 2024 is now open, offering fully funded opportunities for international students at top Turkish universities. Covering bachelor's, master's, and PhD programs, the competitive scholarship includes tuition, stipend, accommodation, health insurance, return ticket, and a one-year Turkish language course. No application fees or language proficiency tests are required. The program aims to provide 5,000 scholarships annually for various academic pursuits. Scholarship Summary. Turkey, through the Turks Abroad and Related Communities Organization, is hosting a fully funded scholarship program for individuals from all countries. The program encompasses a range of academic pursuits, including short courses, bachelor's, master's, and PhD programs. The application deadline for this opportunity is the 20th of February 2024. Scholarship Coverage. Scholarship coverage for undergraduates. Monthly stipend. Bachelor students will be provided with a monthly stipend of 1,000 TRY to support their living expenses. Full tuition fee coverage. The scholarship fully covers the tuition fees for undergraduate studies at the respective Turkish university. Free public health insurance. Students benefit from complimentary public health insurance, ensuring their well-being throughout their academic journey. Turkish language course. A one-year Turkish language course is included, facilitating students' integration into the academic and social environment. Free accommodation. Undergraduates will enjoy free accommodation in the dormitory of the respective Turkish university, enhancing their overall academic experience. University and program placement. Assistance in university and program placement is provided, ensuring students find the right fit for their academic and career goals. Free return air ticket or reimbursement. Bachelor students are entitled to a complimentary return air ticket or reimbursement if they opt to purchase their own tickets. Scholarship coverage for graduates, master's, and PhD. Monthly stipend. Master's students will receive a monthly stipend of 1,400 TRY, while PhD students will be granted 1,800 TRY per month to support their living expenses. Full tuition fee coverage. The scholarship fully covers the tuition fees for both master's and PhD programs at the respective Turkish university. Turkish language course. A one-year Turkish language course is provided, aiding graduates in adapting to the academic and social environment. Free public health insurance. Comprehensive public health insurance is included, ensuring the health and well-being of master's and PhD students. Free accommodation. Graduates will enjoy free accommodation in the dormitory of the respective Turkish university, enhancing their overall academic experience. University and program placement. Assistance in university and program placement is offered to ensure graduates find the most suitable academic paths. Free return air ticket or reimbursement. Selected master's and PhD students are entitled to a complimentary return air ticket or reimbursement if they choose to purchase their own tickets. Turkey scholarship coverage for short courses. Turkey Research Scholarship Program, 3 to 10 months. Participants in the Turkey Research Scholarship Program receive a monthly stipend of 3,000 TRY for the duration of their 3 to 10-month research program. Available programs. Students globally have the opportunity to pursue bachelor's, master's, and PhD programs across diverse disciplines at Turkish government universities. The extensive list of programs includes fields such as aeronautics and space engineering, environmental sciences, medicine, sociology, and urban and regional planning, among others.
Eligible universities. The Turkey government scholarship is applicable to students enrolled at various prestigious government universities across the country. Some of these universities include Akdeniz University, Anadolu University, Ankara University, Bogazici University, Bursa Uludag University, Ege University, Istanbul Technical University, Koç University, Middle East Technical University, Mimar Sinan Fine Arts University, Pamukkale University, Sakarya University, Selçuk University, and Yıldız Technical University, among others. Eligibility criteria. Applicant eligibility. Students from all countries are eligible to apply. Graduates are those expected to graduate by the end of the current academic year, before August 2024, can apply. Turkish citizens are not eligible. Researchers and academics are eligible. Individuals currently enrolled in Turkish university programs at the intended level are not eligible. Selected students must be prepared to present necessary documents upon request. Minimum academic criteria. For bachelor's degree programs, minimum 70% academic score. For master's and PhD degree programs, minimum 75% academic score. Health sciences applicants, medicine, dentistry, pharmacy, minimum 90% academic record. Age criteria. Undergraduate programs, under the age of 21. Master's programs, under the age of 30. Doctorate programs, under the age of 35. Postdoctoral programs, under the age of 45. Documents required. ID card or passport. Recent photograph of the candidate taken within the last 1 year. Diploma or temporary graduation certificate. Transcript. International exam results GRE, GMAT, SAT. If requested by the chosen university or program. International language test results TOEFL, DELF. If requested by the chosen university or program. Research proposal and example, for doctoral applications. Letter of intent. Sample letter of intent is given below. This is just to give an idea. You have to write your unique letter of intent explaining your preferences, expectations and goals for the future. Download sample letter on intent for Turkey Bursları Scholarship 2024. Application deadline. The application period for the Turkey government scholarship is from January 10th to February 20th. The evaluation process will take place during March, April, and May, followed by the interview period in June and July. The results will be announced in early August, and successful applicants will initiate the initial procedures in August. Transfers of grantees to Turkey are scheduled for September. How to apply. Create account. Create your account at Turkey Scholarships application system. University and program selection. After creating your account, you can list your preferred university and programs. Approve your application. After selecting university and programs, review all the stages and documents. Approve your application. Upload documents. Upload all the required documents. And include any extracurricular activities and achievements in different fields. For more information, please click on official website, and for apply, please click on apply portal. Now I will show you video guide on how to apply. Just watch and relax. Stay blessed. Love you all. एंड लॉगिन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से वो कह रहे हैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड करें, पासवर्ड और लॉगिन कर लें। तो लॉगिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम इस पेज को पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। रजिस्टर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम आ रहा है, आपने अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपका नेम 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो मिडिल नेम आपका यहाँ पे आएगा और लास्ट नेम यहाँ पे आएगा। और अगर आपके 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो आप फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखोगे, लास्ट नेम आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ से अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये डेमो के तौर पर ऐड करके दिखाया। यहाँ पर सबसे अहम चीज है नेशनैलिटी, सिटीजनशिप आपने यहाँ पे ऐड करनी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना कंट्री ऐड करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तानियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप इंडिया से मुझे देख रहे हैं, इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अफगानिस्तान है या किसी और कंट्री से आप देख रहे हैं तो देन आपने अपने जो है वो जो भी आपकी सिटीजनशिप है वो यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आ जाएगा आपका ईमेल एड्रेस, वो जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है,
आउटलुक है, जो भी है वो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड कर देना है। अगेन आपने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर अगेन लिखना है। उसके बाद पासवर्ड ऐड करना है और पासवर्ड जो है वो आपका कम से कम 8 लेटर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। अगेन पासवर्ड को ऐड करोगे, यहाँ पे आ गया सीक्रेट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन ऐड कर लेना है। बाजुकात आप जो है वो अपना पासवर्ड भूल जाते हो, तो देन आप इस क्वेश्चन की मदद से जो है वो अपना जो है वो अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरह से आप कोई भी बना लें जो आपको पता हो। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आई अप्रूव के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा आपके सामने, डायलॉग बॉक्स होगा कि आपका नाम ये है, तो आपकी ये मालूमात सही है, एग्री करते हैं, हम सेव कर दे, तो आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपनी ईमेल आपने चेक करनी है। उस ईमेल की जो है वो आपको एक टर्की बर्सलारी जो स्कॉलरशिप है, इस पोर्टल की तरफ से आपको एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, ठीक है। उस एक्टिवेशन लिंक को आपने ओपन करना है, फिर आपका अकाउंट जो है वो रिएक्टिवेट होगा। यहां पर देखें हमारे पास जो है वो आ चुका है और यहाँ पर कुछ लिखी हुई है मालूमात, ये देख सकते हैं। तो अगर इसका मतलब यही है कि आप लिंक के ऊपर क्लिक करें और आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। देखें नीचे एक लिंक है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कांग्रेचुलेशंस, आपका जो अकाउंट है ना वो एक्टिवेट हो गया है, अब आप साइन इन कर लें। ये साइन इन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने पेज को यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना है इनटू इंग्लिश, देन आपको सारा इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आएगा। तो सिंपल मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें जी हमारे पास साइन इन पेज आ चुका है। अब सिंपल यहां पर हमने वही अपनी जो है वो जीमेल ऐड करनी है जिसके थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, देखता हूं कॉपी वाला डाटा यहां पे आ सकता है। मैंने ऐड किया तो देखिए ऐड हो गई है। अब मैंने यहां से अपना जो है वो पासवर्ड ऐड करना है, आपने भी वही पासवर्ड ऐड करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था। उसके बाद आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। व्यूअर जैसे ही आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है वो लॉगिन हो चुका है, एक डैशबोर्ड आ चुका है। और व्यूअर्स यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अब देख रहे होंगे आपके यहाँ पर कुछ येलो सर्कल्स हैं और कुछ रेड हैं। तो व्यूअर ये जो रेड सर्कल्स हैं, मैं कोई कलर चेंज कर देता हूं ताकि क्लियर नजर आ सके। ये देखें ये जो रेड सर्कल्स हैं इसका मतलब ये है कि ये तो मालूमात आपने जरूरी ऐड करनी है, और जो येलो है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको हमने जो है वो फिल करना है। सबसे पहले हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन को कंप्लीट करना है, फैमिली इंफॉर्मेशन है। चलिए हम साथ साथ करते हैं। आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है, कुछ प्रोसेसिंग हो गई, इस तरह से आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जेंडर, यहाँ पे आप जो है वो सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डेमो के तौर पर ऐड कर देता हूँ। ये लें ऐड हो गई है, ठीक है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनैलिटी है, कंट्री ऑफ बर्थ कोई और है, ठीक है, नहीं जी पाकिस्तानी है हमारा, ठीक है। सिटी ऑफ बर्थ पाकिस्तान के अंदर कौन सा सिटी है आपका, ठीक है, कोई भी आप डाल दें। मैं डेमो के तौर पर मुल्तान ऐड कर रहा हूँ। टाइप योर आईडी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप पासपोर्ट नंबर ऐड कर दें या फिर आप सिटीजनशिप नंबर। अब सिटीजनशिप नंबर कौन सा होता है आपका, CNIC नंबर, ठीक है, आईडी कार्ड नंबर। डेमो के तौर पर कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, ये लें, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने भाई डैश भी देनी है साथ में, तो डैश भी दे देते हैं, ये लें, ठीक है। वो कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो यहां पर आप अटैच करें, यहां पर अटैच करना पड़ेगा। व्यूअर्स वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो यहां पर आपने जो है अपना कार्ड अटैच करना है, ठीक है। आपने वो अपना जो शनाख्ती कार्ड है ना, कोशिश करें स्मार्ट कार्ड, तो स्मार्ट कार्ड का फ्रंट एंड बैक पिक्चर लेकर उसे आपने एक ही पिक्चर के अंदर रखकर यहां पर अटैच करनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फाइल्स के अंदर आ जाएंगे और यहां पर आप देखें जी जो भी आपने देखे, ये देखिए मैंने यहां से सिलेक्ट कर दिया, ये मैंने एक PNG पिक्चर ऐड कर दिया, ठीक है। आई हैव अ सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ये करेंगे तो वो बताना है कहाँ का है, अदरवाइज आप इसको स्किप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। और मजीद वो यहाँ पे पूछ रहा है जी कि आप किस जो है वो रिलीजियस से, आपका मजहब क्या है, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं इस्लाम को ऐड कर देता हूँ। और मजीद आपने यहाँ पे बताना है जी, ये आपका मजीद यहाँ पे आ रहा है कि आप सुन्नी हैं, वहाबी हैं, वो यहाँ पर आप जो है वो कुछ भी मालूमात ऐड करेंगे। जब आप पेज को यहाँ से अपने को ट्रांसलेट करेंगे ना, अपने मोबाइल को मद्देनजर रखते हुए जो भी है, यहाँ पर आप जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ ट्रांसलेट आपने कैसे करना है। अगर आपको फीचर ना आए, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स वाली लाइन मिल जाएगी, आपने उस लाइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको देखें ट्रांसलेट है, तो देन अब यहाँ पे ट्रांसलेट है, डायरेक्ट लैंग्वेज है, ठीक है, ये डायरेक्ट लैंग्वेज है और ये इंग्लिश है,
ठीक है, ये इंग्लिश में आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है और उसमें फिर जब ट्रांसलेशन हो जाएगा तो देन वो आपने इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिसेबिलिटी स्टेटस, कि आप मजदूर तो नहीं है, अगर मजदूर हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, अगर हैं तो अदरवाइज आप जो है वो इसको इग्नोर कर देंगे। ओके, और उसके बाद व्यूअर्स मजीद यहाँ पर आपका यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, आपने यहाँ से पिक्चर को ऐड करना है, चूज फाइल के अंदर जाना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आपकी पिक्चर पड़ी है वो ऐड करनी है। यहाँ पर मैं एक पिक्चर ऐड कर चुका हूँ, ठीक है, ये देखें ये ऐड हो चुकी है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, आपने अपनी जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ये देखें ऐड हो चुकी है पिक्चर। आप सिंपल व्यूअर्स आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ फील्ड्स टू बी फिल्ड इन पेज 5 फिल द रिक्वायर्ड, कुछ यहाँ पे रह गया जी, आईडी कार्ड नंबर हमारा रह गया है। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, और आप इधर देखेंगे ना तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने अगर आप देखेंगे तो टिक मार्क हो चुका है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो चुकी है। अब व्यूअर्स आपने सेकंड स्टेप पे आना है, फैमिली इन्फॉर्मेशन। आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी मदर का नाम लिखना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी मदर का नाम है सकीना, ठीक है, और उसके बाद आपकी वो मदर जिंदा है, ठीक है जिंदा है, और उसके बाद माई मदर वर्क्स, अगर आप कहें तो वर्क्स उनका ऐड कर सकते हैं, वो कोई काम नहीं करती, हाउसवाइफ, आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम ऐड करना है, लाइक मुस्तफा, और वो भी जिंदा है तो यस जिंदा है। उसके बाद आपके फादर क्या काम करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप मजीद बता सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं, अगर करते हैं तो। अगर वो भी घर में ही रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो देन आपने इसको स्किप कर देना। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, कितने बहन भाई हो आप, ठीक है, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, 3 है मिसाल के तौर पर, वो सिंगल हैं, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या देते हैं, अराउंड अबाउट 40 से 50 हज़ार मंथली इनकम है, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ जी, $100 आपकी हो जाएंगे 30,000, ये 100 टू यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब सिंपल आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग के बाद आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी। अभी कुछ ये देखिए, योर फैमिली इन्फॉर्मेशन हैज सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली इन्फॉर्मेशन के सामने भी टिक लग चुका है। अब वो कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फो, जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो अपनी करंट वो ऐड करनी है। इसके ऊपर आप थर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो कुछ प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन हो चुका है। वो कह रहे हैं कि आपका कंट्री कौन सा है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना कंट्री पाकिस्तान। ओके, और उसके बाद आपने अपना सिटी यहां से सिलेक्ट करना है। तो मैं मुल्तान को लेकर चल रहा हूं तो मैंने मुल्तान ऐड कर दिया। मुल्तान का पोस्टल कोड क्या है, अब आपको नहीं पता कि मुल्तान का पोस्टल कोड क्या है, या आपको अपने पोस्टल कोड का, सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता है, तो आप यहां से जो है वो पोस्टल कोड उठाओगे, उसको करोगे कॉपी करने के बाद वापस आप वहीं पे जाओगे और यहां पे कर दोगे पेस्ट। उसके बाद वो कह रहे हैं नंबर ऐड करना है आपने, तो यहां पे आपने कंट्री कोड के साथ, कंट्री कोड खुद ब खुद ऑटो आ जाएगा, तो आपने 0 के बगैर जो है वो अपना नंबर ऐड करना है। तो मैं यहाँ कुछ ऐसे ऐड कर देता हूं। फिर वो कह रहे हैं दूसरा नंबर भी ऐड करो, वो भी मैं कुछ ऐसा ही नंबर ऐड कर देता हूं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपना स्ट्रीट आपकी कौन सी, अगर आप रहते हो सिटी में तो आपका स्ट्रीट नंबर होगा, आप विलेज में रहते हो तो यहाँ पर आप जो है वो अपने जो है वो विलेज का नाम ऐड कर सकते हो, जो भी बनता है, ठीक है। मिसाल में स्ट्रीट नंबर आपकी है तो मैं क्या देता हूँ 1 है भाई। उसके बाद आपकी बिल्डिंग नंबर क्या है, मैं क्या देता हूँ जी 1 है। ये मैं डेमो के लिए कह रहा हूँ, डोर नंबर क्या है तो 1 है। ये आपने अपना ऐड करना है, ठीक है। अब देखें, माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम जो है वो रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर है तो आप उसका फिर अलग से ऐड करोगे अपना परमानेंट, ठीक है। अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दोगे अगर आपका यही परमानेंट एड्रेस रहने वाला है। ओके, प्लीज स्टेट हाउ लॉन्ग यू हैव, आप कितनी देर से जो है वो यहाँ पर रह रहे हो अपने, यानी कि इन मंथ्स और ईयर्स आपने बताना है। ईयर्स आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ये हम 2 ईयर्स से रह रहे हैं या हम जो है वो 20 ईयर्स से रह रहे हैं, वो आपने ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये फेसबुक अकाउंट है तो मैं यहाँ पर, आपका यूजर नेम होता है, जिन्होंने यूजर नेम बनाया होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एजू अपडेट्स, ठीक है। ये लें, स्पेलिंग ठीक है, गलत हो गई है, नहीं ठीक है, दी एजू अपडेट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं लिंक्डइन अकाउंट आपका है, तो मेरा जो है वो लिंक्डइन अकाउंट भी है, ठीक है, वो भी हमने ऐड करना है। सेम इसी को मैं उठाता हूँ यहाँ से, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं ट्विटर अकाउंट है, तो है भाई, हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं। गूगल है, स्काइप है, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। ओके, अब सिंपल क्या करना है, आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग होगी, वो फौरन आपसे आपको बताएगा कि जो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। ओके, अब आप जो है ना यहाँ पे देखें, इसका भी टिक लग चुका है। वो कह रहे हैं अब एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करें, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 4th के ऊपर। जैसे क्लिक किया तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो अपनी तमाम एजुकेशन को ऐड करना है, मिडिल, हाई स्कूल, बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है।
सबसे पहले आप आएंगे मिडिल स्कूल पे। मिडिल स्कूल आपका कौन सा था, ठीक है, आपका बेसिक स्कूल कौन सा था, वो किस कंट्री में था, मैं एक यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही आपने सारी जो है वो ऐड करनी है। मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, सिटी मैं क्या देता हूँ, मुल्तान ही है हमारा, और यहाँ पे है जी स्कूल मुल्तान के अंदर उन्होंने सारे ओपन कर दिए हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे किसी भी स्कूल में रहे हो, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे आता है। लो जी गवर्नमेंट आ चुका है, हाई स्कूल ये ले, हुसैनागाई जो है जिसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। स्टेटस यहाँ पे देखिए आपने ग्रेजुएट किया है, यहाँ से कंटिन्यूज है या क्या किया है भाई, कर लिया है कंप्लीट। देखें यहाँ पे ग्रेजुएट, शायद इसका मतलब यही ले रहे हैं कि आपकी स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। कब से लेकर कब तक आपने किया था, मिसाल के तौर पर हमने किया था ये 2006 से हमने स्टार्ट किया था, ये आपका वहां पे होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन डेट आपकी क्या है, जाहिर बात है कि हमारा यहाँ पे 2008, ओके। चलें, तो अब यहाँ पे ग्रेड टाइप, ठीक है, मतलब कितने ग्रेड थे आपके, कितने मार्क्स थे आपके, वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं जितने भी थे आपके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी प्लीज सिलेक्ट ग्रेड्स, यहाँ पर ये लें, ओके। यहाँ पे ग्रेड 00, अच्छा यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है ग्रेड टाइप कि आपका जो मालूमात है या आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह का है। उसमें ग्रेड सिस्टम है, वो परसेंटेज सिस्टम है, वो मार्क्स सिस्टम है, इस तरह से। तो मिसाल के तौर पर मिडल है तो वो भाई ग्रेड सिस्टम था हमारा, ठीक है, वो कितना आपका ग्रेड आया था वो आपने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ऐड हो चुका है। अब आपने उस डिप्लोमे के अपने रिजल्ट कार्ड की पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है, ओके। आपने पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है, ऐसे ना वो आप मेरी तरह जो है वो किए जाएं। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट है, जो उसका रिजल्ट कार्ड है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। डिप्लोमा है तो ऐड कर दो, अदरवाइज स्किप कर दो। और उसके बाद हैव यू अचीव्ड एनी रैंकिंग, आपने कोई अचीव किया है भाई, नो, ठीक है। अगर यस करोगे तो मजीद डिटेल ओपन हो जाएगी। इसको कर लेंगे सेव। जैसे सेव के ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि एजुकेशन हैज बीन अपडेटेड, मिडल वाली अब आपने हाई स्कूल वाली करनी है, बिल्कुल सेम तरीका, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट करते जाएंगे। जब आप यहाँ पर इसको भी ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद व्यूअर्स आप जो है वो दोबारा जब आपकी हाई स्कूल की ऐड हो जाएगी, फिर आपकी एसोसिएट डिग्री की आ जाएगी, ठीक है। जैसे हाई स्कूल की आप ऐड करोगे ये भी आपका बटन एक्टिवेट हो जाएगा। आप मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए कर रहे हो तो फिर जाहिर बात बैचलर्स डिग्री भी आपकी होगी। वो इस तरह जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे वैसे वैसे ये जो बटन है वो एक्टिवेट होते जाएंगे, ओके। ये देखें मिडिल स्कूल ऐड हो चुका है, यहाँ पे मैंने ऐड किया था। इसी तरह मजीद आपने हाई स्कूल ऐड करना है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने हाई स्कूल की एजुकेशन यहाँ पे ऐड की। जैसे ही ऐड की उन्होंने मजीद आगे एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्रीज जो है वो इन दोनों को एक्टिवेट कर दिया है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएस किया होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बीए बीएससी की होती है। अगर बीए बीएससी की है तो आप एसोसिएट डिग्री के अंदर आएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। और अगर आपने जो है वो बीएस किया हुआ है तो आप बैचलर्स डिग्री के ऊपर आएंगे और यहाँ पर मालूमात को ऐड करेंगे, ओके। इसी तरह आप ऐड करते जाएंगे और आपके बटन आगे से एक्टिवेट होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ स्टेप है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वो भी ऐड हो चुका है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा लैंग्वेज डिटेल। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा नेटिव लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज जाहिर बात आपने अपनी यहाँ पर इंग्लिश ही रखनी है, ठीक है। इंग्लिश आप रखेंगे तो देन आपको यहाँ पर कुछ जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। इंग्लिश आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद वो कह रहे हैं अदर लैंग्वेज भी कोई आपको आती है, इसको आप नेटिव लैंग्वेज को आप सेव कर लेंगे, ठीक है। हमारी इंग्लिश सेव हो चुकी है। अदर लैंग्वेज वो कह रहे हैं कि आपको कोई आती है, वो आप ऐड करना चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ जी भाई, हमें उर्दू भी आती है, अच्छे तरीके से आती है, हम इसके अंदर भी जो है वो एडवांस्ड हैं और हम इसको भी सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद देखेंगे तो ये भी सेव हो चुकी है। और मजीद अगर आप वो कह रहे हैं कि तुर्किश लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे, अगर यस करेंगे और बताएंगे कि डू यू हैव अ सर्टिफिकेट, तो नहीं सर्टिफिकेट नहीं है। और लेवल क्या है जी कि हम अभी सीख रहे हैं, इससे आपको वो मजीद जो है वो बेनिफिट देंगे। कहां से आप सीख रहे हैं, वेयर डिड यू लर्न तुर्किश, तुर्किश लैंग्वेज आप कहां से सीख रहे हैं, तो आप यहां पे ऐड कर दो भाई हम YouTube से सीख रहे हैं और सेव कर देंगे, ये आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। देखिए इन्फॉर्मेशन हमारी ऐड हो चुकी है, लैंग्वेज भी यहां पे ऐड हो चुकी है। अब आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करोगे, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दोगे। अगर है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आना है, बताना है जी आई हैव कंप्लीटेड एंड करंटली डूइंग इंटर्नशिप। इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहां से आप जो है वो ऐड करोगे कि कहां पर किया है, कैसे किया है, कंट्री कौन सा है, कहां किस डिपार्टमेंट के अंदर किया है। तो ये चीजें आपने सेव करनी है। तो मैं इसको बैक लेके चलता हूं, ठीक है। यहां पे देखें वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है तो मैं ऐड नहीं करूंगा। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहां पे देखिए कि आपने कोई लेट, गेट, नेट, आपने कोई ऐसा टेस्ट दिया है जैसे नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, कोई लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, क्या आपने ऐसा कोई टेस्ट दिया है? ये देखिए एसीटी, गेट, जीमैट, हैट, एचईसी के अंडर में आ जाते हैं। ऐसा कोई टेस्ट दिया है तो ऐड करना है, तो इसको भी इग्नोर कर दो। सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक्टिव रहते हो,
क्या आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई अवार्ड, कोई आपके पास प्रोजेक्ट है, कोई सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट के ऊपर जाओगे और यहाँ पर ऐड करोगे आपने ओएमसी का कोर्स किया हुआ है, आपने कोई भी कोर्स किया हुआ तो ऐड करोगे। लाइक मैंने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को ऐड करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने ये कब किया है, कब कंप्लीट हुआ है, भाई ये 2021 में हमारा जो है वो हो गया था। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है, मैंने तो ई-रोजगार से किया है ऑनलाइन। मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ सर्टिफिकेट, फील्ड कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मार्केटिंग है भाई हमारी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, मार्केटिंग ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है, यानी कि आपने अपने सर्टिफिकेट का उसकी पिक्चर यहाँ पे अटैच करनी है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करना है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपने कोर्स के हवाले से आप चैट जीपीटी पे जाओ, लिखो राइट डिस्क्रिप्शन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो वो काफी पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव लिख देगा, उसको आपने करना है यहाँ से ऐड करके सेव। जैसे ही सेव करोगे आप तो व्यूअर्स देखिएगा कि वो आप कहेगा कि सोशल एक्टिविटीज भी सक्सेसफुली जो है वो आपकी सेव हो चुकी हैं। कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद जो है वो कर देगा, क्योंकि मेरे इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सोशल एक्टिविटीज सेव हो चुकी है, ओके। ये और उसके बाद मजीद आपने कोई जो है वो यहाँ पे आप कोई खिदमात सर अंजाम दी हैं, लाइक हमारे पाकिस्तान के अंदर टाइगर फोर्स आई थी, क्या वो आपने किया है, उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। जैसे कि हमने टाइगर फोर्स को ज्वाइन किया था, ठीक है, और उसके बाद कहां से, किसी एनजीओ के थ्रू किया था, किसके अंडर में किया था आपने, तो ये जो टाइगर फोर्स की जो इन्होंने अथॉरिटी दी थी, एडमिनिस्ट्रेशन दी थी, वो असिस्टेंट कमिश्नर्स को दी हुई थी। इसी लिख देता हूं, ठीक है, या असिस्टेंट। और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते रहे हो, क्या करते रहो, तो वो आपने ऐड करनी है और इसको सेव कर देना है। मैं वैसे आपको करके दिखा रहा हूं, आपके पास नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो कुछ सेकंड्स के अंदर हमारी ये भी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, सोशल एक्टिविटीज। उसके बाद आ जाता है टर्की एक्सपीरियंस, क्या तुर्की के हवाले से आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वो आपने ऐड करना है। यहाँ पे देखिए नो 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 नो, यहाँ पे देखिए एडिट है, एडिट क्लिक किया तो देखना है, वो कह रही है कि कभी आपने टर्की के अंदर जो है वो स्टे किया है, आर यू इन टर्की नाउ, नहीं हम टर्की से नहीं है। क्या आपके पास जो है वो प्लीज लर्न अबाउट स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे देखें, आपने ये स्कॉलरशिप के हवाले से कहाँ से सुना है, तो वो आपने यहाँ पे बताना है। भाई यहाँ पे हमने जो है वो सोशल मीडिया से सुना है, देखते हैं यूट्यूब है नहीं है, तो सिंपल आप जो है वो सोशल मीडिया को ऐड कर दोगे। डू यू हैव अ रेलेवेंट, कोई ऐसा रिलेटिव है जिसने टर्की से स्कॉलरशिप हासिल की हो, तो भाई नहीं है, ठीक है। डू यू हैव एनी रिलेटिव लिविंग इन टर्की, आपके कोई जानने वाला कोई रिश्तेदार टर्की में रहता है तो यस करोगे, अदरवाइज उसको नो कर दोगे। नो करने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो व्यूअर्स देखिएगा कि ये मालूमात भी सेव हो चुकी है, इसके ऊपर भी टिक लग चुका है। अब माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, आपने यहां से अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, ठीक है। अभी जो है वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हुआ है, आपकी प्रोफाइल सेट हो गई है, ठीक है। एप्लीकेशन रिव्यू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने ना तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, ना प्रोग्राम सेलेक्ट किया है कि किसमें अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे देखें, व्हाट शुड यू डू बिफोर स्टार्ट माय एप्लीकेशन। यहाँ पे कह पहले आपने रिव्यू करना है प्रोग्राम्स को कि किसमें अप्लाई करना है, फिर आपने यूनिवर्सिटी को कि किस यूनिवर्सिटी में करना है, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, मतलब तमाम डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी रिज्यूमे आ जाएगी, कवर लेटर आ जाएगा, पर्सनल स्टेटमेंट आ जाएगी, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स आ जाएंगे, आईडी कार्ड, ये सारा कुछ आपने एक पीडीएफ फाइल के अंदर ऐड करना है और उसके बाद करना है यहाँ पे रिव्यू। अब कैसे करेंगे, ऊपर देखिए जी आपको यहाँ पे सर्च स्कॉलरशिप का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको पेज लेके आ जाएगा यहाँ पर, और सिंपल आपने इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है, तमाम प्रोग्राम यूनिवर्सिटी आपके सामने शो हो जाएंगे। तो देखिए ये जो है वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है। इसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं, काउंट ऑफ यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री है, नर्सिंग है, मैकेनिकल, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर्स। तो विवर इस पर जो मैंने 1 वीक पहले वीडियो इसी पर अपलोड की थी, वो देख लीजिएगा, उसमें तमाम प्रोग्राम्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से हैं। अब मिसाल के तौर पर आप करना चाहते हो, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करता हूं, अब आ गई यूनिवर्सिटी, या किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो आप, जो है वो यहाँ पे देखिए मैंने ये प्रोग्राम इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, 9/1/2021 से एप्लीकेशन डेट, बीइंग हाई स्कूल। आपने यहां से अब जो है वो सर्च करना है, ठीक है। सर्च करके आप यहाँ पे आएंगे और मजीद यहाँ पे ये देखें, ये तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो है वो देखते जाएं कि किसके अंदर जो है वो डेट ओपन है, किसके अंदर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने से ही मिलेंगी, ओके। व्यूअर्स आपने उन तमाम जो है वो प्रोग्राम से निकल के वापस यहाँ पे आपने आ जाना है। अब यहाँ पे माई एप्लीकेशन है ना, तो इसके सामने येलो आ रहा है सर्कल, इसको आपने फिलहाल स्किप करना है। आपने ऊपर होम पेज है तो होम पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हमारी प्रोफाइल तो सेट हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि बताएं किस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें, एसोसिएट डिग्री के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री के लिए या मास्टर्स के लिए या पीएचडी या कोई लैंग्वेज क्या है जी,
तो मिसाल के तौर पर आपने करना है जी बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई, तो बैचलर डिग्री में आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है या अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो हमने करना है जी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई। तो सिंपल इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां से वो कह रहे हैं जी सिलेक्ट करें कि आप व्हाट डिड यू आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल, क्या आप स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल आई वर्क, किसके अंदर वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। या फिर आप यहां से सिलेक्ट करेंगे आई अटेंड कोर्स, कौन सा कोर्स, तो आप कुछ भी यहां पे लिख दें कि हमने जो ग्रेजुएशन किया है वो हम उसके बाद ये कोर्स कर रहे हैं, उसके कोर्स के बारे में बता दो, ठीक है, ताकि उनको पता लगे कि ये बंदा वेला नहीं बैठा अपना कोई ना कोई। अपने इसको सेव करना है। सेव के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और वापस आप इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो मुझे कह रहा है कि योर एज इज नॉट सुटेबल फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मैंने स्टार्ट के अंदर 1998 जो है वो जस्ट डेमो के तौर पर सिलेक्ट की थी, उस वजह से इसने मुझे कह दिया कि आप बैचलर्स के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। एसोसिएट के लिए हम करके देख लेते हैं। आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। यहां पे वो कह रहा है कि एज सूटेबल नहीं है और नेशनैलिटी भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि एसोसिएट के जो है वो प्रोग्राम अनाउंस ही नहीं किए गए, ठीक है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हमारे सामने ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने डेट ऑफ बर्थ अब चेंज की है, 2003 की है। मैंने जो लास्ट वीडियो है अपलोड की थी उसमें बताया हुआ है कि अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एज लिमिट आपकी क्या हो, जो सारी चीजें आपने देख लेनी है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन कंडीशंस आ चुकी हैं, ये सारी आपने रीड कर लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ पे ऐड करना है। आई हैव एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे देखिए कंडीशंस हमारी एक्सेप्ट हो चुकी हैं। वापस जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो आ जाएगा यहाँ पे प्रेफरेंस, कि बताएं कि आपने किसके अंदर अब करना है अप्लाई, मतलब कौन से जो है वो प्रोग्राम को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मुकम्मल डिटेल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। देखिए कि यहाँ पर आपको मिल रहा है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो मजीद आगे बता रहा है जी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें एक मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें मजीद यहाँ पे आ जाएंगे, यस करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें जो है वो सेव का बटन मिल रहा है जी। ये मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। आई हियर बाय एग्री के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और सेव बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। वो कह रहा है आपका प्रेफरेंस जो है वो सेव हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब मजीद जो यहाँ पे देखिए लेटर ऑफ इंटेंट आ चुका है, पर्सनल स्टेटमेंट आपने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे आपने लिखना है भाई क्यों आपको ही क्यों हम दें, आखिर क्या वजह है, अपने बारे में बताएं कुछ। यहाँ पे आप एडिशनल आइटम जो है वो यहाँ पे ऐड करें, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर किया, वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, इसको सेव करेंगे। ये मैंने कुछ सेव कर दिया है। अब देखें इंटरव्यू लोकेशन, बताएं जी इंटरव्यू लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो ऐड करें। जैसे कि सिटी में करता हूँ जी पाकिस्तान, ठीक है, और सिटी वो कह रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद या कराची के अंदर होगा, तो मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं कर देता हूं सेव। सेव करने के बाद वो कह रहे हैं जी रेफरेंस इंफॉर्मेशन, तो व्यूअर्स रेफरेंस इंफॉर्मेशन ऐड करना जरूरी है, क्योंकि रेफरेंस जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स को ऐड करना, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐड कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐड कर सकते हैं, वो आप यहां से ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि उनका नेम होगा, उनका जो है वो फोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, वो कहां पे काम करते हैं, उनकी टाइटल वहां पे वो एचओडी हैं, वो लेक्चरर हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसके बाद आपने यहां पर प्रेफरेंस जो है वो ऐड करना है, दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग टू माई एकेडमिक रेफरेंस, वो आपने यहां पे क्लिक कर देना है। और ये सारी चीजें यहां पे ऐड करके आपने सेव के ऊपर क्लिक करना, तो सेव नहीं होगा, जाहिर बात सब कुछ मैंने यहां पे स्किप कर दिया है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। जब जैसे रेफरेंस इंफॉर्मेशन आप ऐड करोगे फिर आपके सामने आ जाएंगे स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम। ये देखें ये सारे प्रोग्राम आ चुके हैं कि आपका एग्रीगेट इतना होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक आ चुकी हैं, ठीक है। आई हैव रेड यस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी जो है वो आप यस यानी कि इनकी तमाम चीजों से आप एग्री करोगे। एग्री करने के बाद टॉप पे जाना है, सेव बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे सेव बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये मालूमात भी यहां पर आपकी सेव हो जाएंगी। यहां पर देखिए सेव हो चुकी हैं। वो कह रहे हैं दी एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट है, चेक साइन लगाएंगे। यहां पे देखिए ये नाम आ रहा है, बैचलर डिग्री आ रही है, सारी यहां पे प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब सिंपल आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा ऑनलाइन सक्सेसफुली यहां पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई हो चुका है।